आप कह रही हैं सबका साथ सबका विकास, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रामनवमी के दिन आपने मस्जिद के सामने जो किया वो भी सबने देखा। ये क्या सबका साथ है? एकदम बिल्कुल ये सबका साथ है, क्योंकि पहली बार तीर मस्जिद के तरफ नहीं था, तीर आकाश के तरफ था। जब हम बाण ऐसा उठाते हैं तो तीर तो आकाश में जा रहा है ना, अगर मस्जिद पे डालना है तो ये एंगल पे आना चाहिए। ये पहली सच्चाई है। एक काम करते हैं, जीतने के बाद असद के हाथ एक दिन धनुष दे देंगे। धनुष को उठाने के लिए कहेंगे तो तीर वहां जाएगी, यहां नहीं जाएगी। और दूसरी मुद्दा यह है, जिस रमजान में हजरत अली साहब का जुलूस में मैं जाकर लोगों को खाना बांट सकती हूं, तो ये हाथ सिर्फ अमन के लिए तीर ही छोड़ेगा, मजहब के दरार वाला तीर कभी नहीं छोड़ेगा। छोटी सोच वालों की छोटी बातें हैं वो सब, फर्क नहीं पड़ेगा हमको। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी तो कह रहे हैं कि जिस तरह आपने मस्जिद के ऊपर तीर चलाने का एक्शन किया था, ऐसे ही आपकी पार्टी इस देश में हर मस्जिद को भस्म कर देगी, तोड़ देगी। असद को तब तो और एक बात तो ज्ञात देना पड़ेगा, इनकी याददाश्त मेरा लगता है थोड़ा कम हो या पूरा खत्म ही हो गई है। तो 2 मस्जिदें ऐसे तोड़वाया गया है। उनके मामू जान केसीआर जब सेक्रेटेरिएट बना रहे थे, नया सेक्रेटेरिएट, 2 मस्जिदें तोड़ दिए हैं। मामू जान? हाँ जी, तो वो मामू जान बनते हैं। Many would say that you're scared of making a commitment. You've made statements against the AIADMK. Today there is no alliance with the AIADMK because of the statements. And let me just play out what all you've said about the AIADMK, and can we play out that soundbite, Periyar, Jayalalitha onwards, what K. Annamalai has said in the past. முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கட்சி உதாரணத்துக்கு இதே கோயிலுக்கு வெளியே அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 1967 ஒரு பலகையை வைத்திருக்கின்றார். என்ன வச்சிருக்காங்க? கடவுளை நம்பவா முட்டாள், ஏமாளி, அதனால கடவுளை யாரும் நம்பாதீங்கன்னு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கோவில்லையுமே அவர்கள் இது போல் ஒரு பெரிய ஒரு சாதனையை செய்தது போல் ஒரு கம்பத்தை வைத்து கொடியை ஏற்றி வைத்திருக்கின்றார். ஆனா இந்துக்கள் நாம் அமைதியான வழியிலே அறவழியில வாழ்க்கையை வாழ்றோம். அதனால் இன்னைக்கு இந்த ஸ்ரீரங்கத்தினுடைய மண்ணிலிருந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி உறுதி எடுத்துக் கொள்கிறது, தமிழகத்திலே பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி வரும் பொழுது முதல் வேளை அந்த கம்பரத்தை அப்புறப்படுத்தி. Many people say that your statement, your hard line against the AIADMK has cost the BJP that alliance and maybe a few seats in Tamil Nadu. How do you see it? Madam, you are such a senior observer of politics for a long time, different dynamics. I'm sure you will never know, you will always know that a single statement which is always taken out of context by a political party which wants to take it out of context, a single statement will never break an alliance or make an alliance. For example, tomorrow I praise somebody. Will they come for the alliance, madam? Same counter logic I'm giving. Tomorrow I'm saying, oh, they are great people, they are extremely fantastic people. Tomorrow, so the statements can never make an alliance or break an alliance. But coming to the context in which all this are spoken, I will speak this today also, what I spoke there. Next minute I'll speak the same thing. Because, madam, this is an extremely carefully, well thought out, the party line statement. Very well thought out. We are saying, look, do I respect Periyar? Of course, yes, he's a leader. Where is Periyar's, maybe a statue in the land of Tamil Nadu when BJP comes to power? Of course there is a place for him in a statue, but where it will be the public place where every person's statue is there. But you cannot have an offending words right outside a temple in Tamil Nadu. Whichever big temples you go, there is this wording that is put. It says any person who believes in God is a fool. Right up to the word called scoundrel is used if you do a proper English translation. We are saying no, this doesn't have a place in a civilized society. We will remove.
If you want it, we'll put it in a public place where all sorts of language is there, all sorts of ideology is there. You want to respect that particular personal ideology, please go put up mala and come out. We never said we are removing this and throwing. We said it will go to a public place. That is why the people of Tamil Nadu support. Very first time BJP you have come out very clear cut. Look, every language, the same offensive language cannot be outside a mosque. We are against it also. The same offensive language cannot be outside a church. We are against it also. The same respect a temple, church, mosque or a synagogue, everywhere, Gurudwara, every single place. Please don't put an offensive language simply because you are a ruling party. Or I am saying, madam, same DMK I am asking. We will run the 2026 assembly on this referendum. Let DMK come out, put it in the referendum and say, Periyar's words will be there outside a temple. We will say it will not be there outside a temple. We will do a referendum. Sanatana Dharma. When Udayanidhi Stalinji, when we asked him, can we do a referendum of Sanatana Dharma in Tamil Nadu in 2024? He said, no. After 2024, I will talk. Why? Because you have to understand, madam, Tamil politics for a long time was not based on what you give the statements or the policy measures. No. Freebies, cult figures, alliance shifting here and there. The major Dravidian parties on their own, they are about 20-22%. You add alliance to it, you cross 30%. Probably 2024 and 2026 would be the first time in Tamil Nadu politics which will be issue based. 10 years of Modi ji. You like it? Please vote. It will be issue based. 2019, what was Not it? Hindutva versus Sanatan. Madam, here, our concept of Hindutva, Sanatana Dharma in Tamil Nadu for a long time, 70 years, Sanatana Dharma was actually portrayed by the DMK ecosystem as a wrong word. For them, Sanatana Dharma means Brahmin supremacy. For me, the biggest problem in Tamil Nadu is vilification of gender, vilification of caste, vilification of community. Very unfortunately, this is the language DMK speaks. नमस्कार बाशरी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था बट अब 2 हो गए हैं. क्यों मल्टीप्लाई हो रहे हैं? नो मैम, मैं उत्सव कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ. नमस्कार उत्सव जी. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डीक्रिमिनलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में बढ़ती जा रही है, तो अगर इस साल सत्ता में आती है बीजेपी, वो तो किस तरह से उसको खत्म करने को देखेगी कि पॉलिटिक्स से डीक्रिमिनलाइजेशन खत्म हो. और एक और प्रश्न है मैम, मैं पूछ देता हूँ. एक प्रश्न का जवाब, क्रिमिनल एलिमेंट्स इन पॉलिटिक्स, इसको कैसे खत्म किया जाएगा? क्योंकि मुझे कोई पार्टियों के बीच में कंसेंसस होता हुआ नजर नहीं आ रहा. नहीं, ऐसा नहीं है. मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस पर बहुत संजीदगी से सोच भी रही है और इसी हफ्ते हमारा संकल्प पत्र भी आने वाला है, हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है. उत्सव, आपसे निवेदन करूंगी, बस चंद दिन अगर आप इंतजार कर लेंगे तो उसमें पूरा का पूरा बखान हमने करा होगा कि हम क्या स्टेप्स लेने वाले हैं. मैम दूसरा प्रश्न है, मैम एक लास्ट प्लीज मैम. एग्जाम में जब जाते हो तो सप्लीमेंट्री हमेशा आंसर कर कर आते हो क्या? अच्छा मैम, एक क्वेश्चन बस. अच्छा, आपके डिबेट से ये आपने एक बोला था बीच में, मैम आपने बोला था कि मैं दिहाड़ी की मजदूर हूँ. मैम दिहाड़ी की मजदूर की जो सैलरी या फीस जो उनको मिलती है उसमें और एक लॉयर जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. बेटा क्या पढ़ रहे हो? मैम फिलोसफी पढ़ रहे हो ना? कभी ग्राउंड रियलिटी पे आके देखना. लिटिगेशन में, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर इसके बारे में कभी कुछ कर पाई तो जरूर करूंगी. कभी भी आके देखना, लिटिगेशन में कई बच्चे हैं जो मुफ्त में काम करते हैं. लॉ का जो प्रोफेशन है, खासकर की लिटिगेशन, जो कचहरी जाने वाले बच्चे हैं, उनकी काफी दुर्दशा है. ईश्वर ने अगर कभी सेवा का मौका दिया तो इसके लिए जरूर काम करूंगी. मैं, आपको पता ही नहीं है, हमारे यहाँ पे 9 से 5 की तो शिफ्ट होती नहीं है. वी आर वर्किंग राउंड द क्लॉक. और कई चेम्बर्स हैं जो बच्चों को स्टाइपेंड नहीं देते, कई चेम्बर्स ऐसे हैं जो मुफ्त में काम करवाते हैं. और ये भ्रम है कि वकीलों की फीस बहुत ज्यादा हाई होती है. ये एक चंद, मैं कहूंगी कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई, उनकी मैं कहूंगी रोजी रोटी बिल्कुल, वो बहुत अच्छी फीस कमांड करते हैं. लेकिन ज्यादातर जो लोग हमारे प्रोफेशन में हैं उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं है. तो अब इस गेम में कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ ओवैसी जी हैं आपके इसी हैदराबाद के, वो कहते हैं आप तो आरएसएस के हैं, और केसीआर जी कहते हैं आप चुनाव के बाद यहाँ कांग्रेस छोड़कर
30-40 एमएलए लेकर बीजेपी में चले जाएंगे। आप कहते हैं केसीआर जो है वो बीजेपी के बी टीम है, मिले हुए हैं। ये चल क्या रहा है? कौन कहां पर है? ये तो मुझे अच्छा दिखता है। तेलंगाना में कोई भी राजनीति करना है तो रेवंत का नाम लेना ही लेना। इतना मजबूरी कर दिया मैं ओवैसी को, केसीआर को और बाकी के लोगों को कि बिना रेवंत चुनाव नहीं लड़ सकते। तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि चुनाव से पहले भी ऐसी बड़े बड़े बातें बोले, गलत बातें भी बोले, लोग सब सुनकर लोग जवाब दे दिए इन लोगों को। उसके बाद भी ऐसी झूठा बातों से चुनाव जीतने के लिए कोशिश करे। मगर तेलंगाना की जनता बहुत होशियार है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसका इशारा कहाँ चल रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, दारुस्सलाम ऑफिस कहाँ है आपको पता है? कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी? लेकिन सवाल गोशा पूछने महल। का काम तो मुझे हाँ, नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। दारुस्सलाम ऑफिस गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है। गोशा महल से राजा सिंह एमएलए है, जो बीजेपी को हराने के लिए पूरा देश भर घूमने ओवैसी गोशा महल असेंबली में चुनाव नहीं लड़ रहा। इसका मतलब क्या है? अगर सचमुच नरेंद्र मोदी जी असदुद्दीन ओवैसी को अगर चुनाव में हराना है तो क्यों वहां पर हिंदुओं को टिकट दिए? इसका मतलब साफ साफ है, वहां पर नियर अबाउट 60% वोटर्स आर मुस्लिम्स। तो नरेंद्र मोदी जी हिंदू को टिकट देते हुए मुस्लिम पोलराइजेशन कर दे रहा असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जीतने के लिए। अगर नरेंद्र मोदी जी असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव में हराना है तो बीजेपी से एक मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा करके मुसलमान वोटों में भी शेयर कुछ लेकर ये हिंदू वोट भी कंसोलिडेट कर दे, को कैंडिडेट को अगर वोट डाले तो तब असदुद्दीन ओवैसी को हरा सकते हैं। साफ आपके आंखों के सामने दिख रहा है, हिंदू मुस्लिम डिवीजन नरेंद्र मोदी जी असदुद्दीन ओवैसी के लिए कोशिश कर रहा है हैदराबाद में। और जो सनातन के खिलाफ आपके अलायंस पार्टनर डीएम के नेता ने कहा, उसके बारे में आपको लगता है जो कहा वो ठीक कहा? वो गलत है। कौन ठीक बोला है? वो उनका माइंडसेट है, उनका माइंडसेट वो उनको आपका बोलना है। पार्टनर है वो ना? तो क्या? और कांग्रेस पार्टी से परिवार में भी अलग अलग सोचदार रहता है, अलग अलग सोच रहते हैं, अलग अलग बात होते रहता है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोगों को मैं दिखाता हूँ, परिवार में दो पार्टी में है सो वाले, हस्बैंड एंड वाइफ ऑल्सो दे आर इन डिफरेंट पार्टीज इन भारतीय जनता पार्टी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कोई इंडिविजुअल कोई कुछ के उनके माइंडसेट से कुछ कहा तो वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, उसके लिए हम जो बोलना है वो बोलेंगे। आप उस अलायंस पार्टनर, उस सरकार के पार्ट हैं। तो क्या कुछ भी बोल सकते हैं? कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, कुछ बोले तो गलत रहा तो गलत बोल के हम बोल सकते हैं। उनका लेकिन किसी ने बोला नहीं कांग्रेस पार्टी से। मैं बोल रहा हूँ किसी ना, ने- मैं तेलंगाना प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मेरा स्टेटमेंट को क्यों नहीं लेते आप? क्यों मेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या तो कांग्रेस आप कह पार्टी रहे हैं में? कि ये जो सनातन धर्म के बारे में कहा था वो गलत है? बराबर गलत है। किसी धर्म के खिलाफ कोई बोले तो वो ठीक नहीं है। आपको लगता है इसका असर कांग्रेस यूनिटी पार्टी इन पर? डाइवर्सिटी, हर आदमी का, हर जाति का, हर धर्म का अलग अलग नियम है, अलग अलग नियम अलग अलग लोग मानते हैं। हमारा नियम हम मानते, उनका नियम उन मानते, मगर किसी के नियम के खिलाफ, किसी के धर्म के खिलाफ कोई भी कुछ कहा तो वो ठीक नहीं है। वैसे लोगों को पनिशमेंट देना जरूरी है। तो आप- वो इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो या हिंदू धर्म हो, तो उदयनिधि स्टालिन को पनिशमेंट देना चाहिए? जरूर देना है। क्या- क्यों नहीं? अच्छा, पनिशमेंट देना चाहिए। हाँ, जो सिस्टम चलना है, सिस्टम तो प्रिवेल हो जाना है। श्रीधर रामास्वामी का ट्विटर पर सवाल है, बता सकते हैं कि बॉन्ड में चंदा देने वालों में पाकिस्तानी कंपनी का नाम क्यों है? नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं है किसने चंदा दिया और क्या दिया है, और मेरा इस विषय से डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई संबंध भी नहीं है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पार्टी को बहुत लोग चंदा देते हैं। आप में से कोई, बहुत से लोग एक आधे बार एक मेंबर भी होंगे। अब इनमें से कोई व्यक्ति अगर रेड सिग्नल को वायलेट करता है और उसको पुलिस अरेस्ट करती है तो ये योगायोग है, उसको इसके साथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे इस बारे में एक्चुअली जानकारी नहीं है, क्योंकि ये, पर एक बात मैं पक्की बताता हूँ
कि मेरे डिपार्टमेंट में जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, हर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ ई टेंडर निकाल कर दिया है। 10 साल में मैंने 50 लाख करोड़ के काम किए, एक भी काम ई टेंडर के बिना नहीं किया है, और जो लोवेस्ट आया है उसी को काम दिया है। एक भी केस आप निकाल लीजिए, आप निकालिए या दुनिया निकाल ले, मैं तैयार हूं। एक भी गलती होगी तो जो सजा है वो स्वीकारने के लिए तैयार हूं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्वालिटी कॉन्शियस है, और इसके साथ हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। राजनीति में परिवारवाद मुद्दा है, और बहुत से लोग, आपकी पार्टी का बाकी पार्टियों पर रहता है एक आक्रमण, बेटा फिर बेटे का बेटा, फिर इस तरह से पार्टियां चल रही हैं। पहले अशोक गहलोत, फिर जूनियर गहलोत, पायलट फिर जूनियर पायलट, कमलनाथ फिर जूनियर कमलनाथ। लेकिन लोग कहते हैं आपकी पार्टी में भी परिवारवाद है, पुराने नेताओं के बच्चे किसी का पुत्र होना गुनाह नहीं है, और उसको टिकट मिलना भी गुनाह नहीं है। पर जैसे मेरे पुत्र को टिकट दो इसका आग्रह मैं करूं तो वो मीनिंगलेस है। अब मेरे भी लड़के हैं, मेरा लड़का इसी कॉलेज से इंजीनियर हुआ है, और अभी वो पावर प्रोजेक्ट चला था। तो मैंने उस सबको, मेरे लड़के और लड़की को कहा कि मेरे जो कुछ मैंने किया है, एसेट्स क्रिएट हुए वो आपके हैं, कर्जा भी आपका है, एसेट भी आपके हैं, पर मेरी जो राजनीतिक विरासत है इसके ऊपर अधिकार मेरे कार्यकर्ताओं का है, मेरे पार्टी का है, जिनने मुझे बड़ा किया। तो मेरा कोई लड़का लड़की राजनीति में नहीं है, और वो अपना काम करते हैं। ये बात जरूर है कि किसी को अगर मेरे लड़के को काम करना है तो मैंने पोस्टर चिपकाए, दीवारों पर लिखा, वो भी शुरू से काम करे। मेरा लड़का करके एकदम स्टेज पे जाके बैठे और टिकट मांगे, ये नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है। देवेंद्र फडणवीस नागपुर के हैं, इनके पिताजी एमएलसी थे, उसके बाद मैं बना। मैं, उनकी तबीयत खराब थी तो मैं उनके पास गया था कि देवेंद्र को राजनीति में ले जाता हूँ, तो उन्होंने कहा उससे बात करो। तो वो राजनीति में उनके पिताजी के कारण नहीं है, मेरे कारण आया। मैंने उनको बोला कि इसको राजनीति में लाओ। तो सवाल ये उठता है कि किसी का पुत्र होना गुनाह नहीं है, पर उसने अपनी मेटल को प्रूव करना चाहिए, और फिर पब्लिक ने उसको टिकट मांगना चाहिए। गड़बड़ कहाँ हो रही है, जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल लीडर है वो पार्टी को ब्लैकमेल करता है, मेरे लड़की को टिकट दो, दैट इज रॉन्ग। टाइम है, और इज इट टू लेट? डू यू थिंक इंडिया अलायंस वाकई में एक पोटेंट अलायंस है जो मोदी को चुनौती दे सकती है? दे सकता था, लेकिन उन्होंने सही समय पर इसको बनाया नहीं, और जब बनाया उसके बाद जिस सिंसियरिटी से उस आइडिया पर, उस नैरेटिव पर काम होना चाहिए था, वो काम हुआ नहीं। इन्होंने बनाया जून 2023 में। कई लोग, हम लोग सुनते हैं पब्लिक डोमेन में कि मोदी जी ने राम मंदिर का जो ये समारोह था एकदम टाइम्ड टू परफेक्शन की जनवरी में किया ताकि चुनाव में उसका लाभ उठा सके। मान लीजिए कि इस बात को एक बार को सही मान ले कि चुनाव के लाभ के नजरिए से ही ये पूरा मंदिर का काम किया गया, लेकिन ये वो कर इसलिए पाए कि 3 साल या 4 साल पहले उन्होंने ये सोचा होगा कि मंदिर का निर्माण इस गति से कराओ कि वो जनवरी 2024 में हम इसको कर पाए। मतलब वो 3 साल 4 साल पहले से अपनी 24 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप उनसे लड़ रहे हैं, विरोधी, राजनीतिक विरोधी है, तो आपको भी सोच के रहना है कि भैया मंदिर वाला मुद्दा आएगा, 24 से पहले भाजपा मोदी जी उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो इनको भी तो तैयारी 3 साल पहले से सोच के करनी चाहिए थी। ये 3 साल बैठे रहे, अब चुनाव के 6 महीने पहले उठ के इंडिया अलायंस बनाया। अब अलायंस बनाने के बाद भी उनका आप वर्किंग आवर देखिए। इंडिया अलायंस की जो 4 बैठकें हुई हैं जून से लेकर अभी हम लोग बैठे हुए फरवरी एंड में, कुल 4 इनकी बैठक हुई। वर्किंग आवर आप मिलाकर अगर देखेंगे, अगर 2-2 दिन भी है तो 10 दिन, 7-8 दिन का टोटल काम हुआ है। अगर ये जेन्युइनली सीरियस थे, किसी वजह से लेट बना अलायंस, तो किसने रोका था कि जून के महीने में ही 7 दिन तक लगातार ये नेता एक साथ बैठे होते? जितना काम अभी हो रहा है ये काम जून में हो गया होता तो उस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन कुछ फायदा तो जरूर होता है। अगर राहुल गांधी यूरोप 7 दिन जा सकते हैं तो 7 दिन बैठकर इंडिया अलायंस क्यों नहीं खत्म? उसके सारे जो आयरनिंग आउट जिन विषयों पर करनी थी उसी समय कर लेते। कांग्रेस ने यह किया कि इंडिया अलायंस बन गया, उसके बाद इनको सफलता मिल गई कर्नाटक में, तो इन्होंने सोचा पहले जितने राज्य के इलेक्शन हैं ये हो जाए,
इसमें इनका अनुमान था कि इनको बहुत बड़ी जीत मिलेगी। तो वहाँ वन अपमैनशिप था कि अगर हमें जीत मिल गई तो हम इंडिया अलायंस को डिक्टेट कर पाएंगे या उसकी लीडरशिप हमारे पास रहेगी, उसको हम अपने टर्म पर चला पाएंगे। इस चक्कर में जून से लेकर दिसंबर तक इन्होंने कुछ किया नहीं। जून में नतीजे उल्टे आ गए। अब जनवरी में ना माया मिली ना राम, समय भी हाथ से निकल गया, दूसरे आपकी बात सुन भी नहीं रहे हैं और आपकी अपनी इलेक्टोरल हालत खराब हो गई। तो जब आपके एफर्ट में ईमानदारी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होगा ही होगा। और परीक्षा आपके 6 महीने के बाद है, अब आप पूछ रहे हैं भाई क्या करें तो जीते। भाई अब कुछ नहीं कर सकते हो। जब साल भर आपने पढ़ाई नहीं की तब तो आप भगवान भरोसे ही गेस पेपर पढ़ के जाइए और ये होप कीजिए कि शायद जो सवाल आपने पढ़ा है वही आ जाए तो आप पास हो जाइएगा, नहीं तो आपको आपका रिजल्ट तो आपके फेवर में नहीं आने वाला है। 370 का पार्टी का कहना है कि उनका टारगेट है और वो 370 बीजेपी। देखिए आप क्या समझते हैं रियलिस्टिक नंबर क्या है? मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैं ये तो दावा नहीं कर सकता हूं। मैंने पहले कहा कि नंबर मैं नहीं, मेरी क्षमता नहीं कि मैं नंबर किसी के बता सकूं, लेकिन बीजेपी अपने दम पर 370 सीट जीत जाए इसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। रियलिस्टिक नंबर पिछली बार 300 मुझे ये नहीं पता है, ऊपर के नीचे मुझे ये नहीं मालूम, इतना तो बता दीजिए। नहीं मुझे ये नहीं मालूम है। मैं आपको इतना, आप बहुत फोर्स कर रहे हैं तो इतना कह सकता हूं कि चाहे प्रधानमंत्री ने ये बात पार्लियामेंट में कही हो, 370 भाजपा को अपनी सीट, इंडिया की बात नहीं हो रही, अपने भाजपा को अकेले 370 सीट आ जाए इसकी संभावना करीब करीब 0 ही मानता हूं मैं। अगर आएगा तो आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड। So Rajiv Chandrasekhar, what's the experience like to have opponents from the Congress party against you and the CPM fighting against you? Though in New Delhi they are in an alliance of their own, the India Alliance, but in Kerala they are fighting each other and you simultaneously. How does this equation really work in politics? So my association with this Jugalbandi, this duo of the Congress and the CPM, if you remember, starts with the 2G scam. And if you remember that time, the Congress UPA government was a government that existed because of the support of the left. So I certainly know how the two of them operate and what comes out of their cooperation. The 2G scam came out of their cooperation. The Colgate scam came out of their cooperation. So this is an interesting marriage that they have. The country has seen the UPA one, which was a marriage or a political partnership between the Congress and the left before, and they're seeing it again. In Kerala in particular, I think it's very, very strange that these two parties that are cooperating everywhere else in the country, everywhere, Tamil Nadu, Karnataka, Puducherry, Telangana, Andhra Pradesh, and as you go north, all those states, the CPM and the Congress are partners. It is only here that they pretend to be opponents. And I have a theory, which I don't have evidence to prove it, and so therefore I can only propose it as a theory, that they have agreed between themselves that the state will be left to the CPM and the Lok Sabha will be left to the Congress, which is exactly how it is played out between 2019 and now. So the state elections are won by the CPM, but the Lok Sabha elections are to a large extent won by, between the two of them, by the Congress. I don't have proof for this, but I can only give you empirical evidence that this is how it is being played out. इलेक्शन कमिश्नर्स क्या कांग्रेस के जमाने में फेयर थे, न्यूट्रल थे? क्या एक इलेक्शन कमिश्नर ऐसे नहीं थे जो अपने एमपी लैड फंड्स अपनी एनजीओ के लिए इस्तेमाल करते थे? वो सारे कांग्रेस पार्टी के एमपी से लेते थे और उन्हीं पर जजमेंट्स देते थे या क्वासाई जजमेंट्स देते थे जब इलेक्शन कमीशन पे बैठे थे। उन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया। क्या ये कांग्रेस के वक्त नहीं हुआ? कांग्रेस के वक्त क्या जुडिशरी में हस्तक्षेप नहीं हुआ? इंस्टीट्यूशन को सबवर्ट नहीं किया गया? ये जिसके हाथ में पावर आता है वो करता है। मैं नहीं कह रही कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन पहले भी हुआ है। How are you different? मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि जो चुनाव आयोग के सदस्य हैं वो पार्शल हैं। ये तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंच गए पता नहीं कहां से। मैं तो ये कह रहा था कि एक उच्चतम न्यायालय का फैसला था, उस फैसले में ये कहा गया था कि जब आप इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं उस सिलेक्शन कमिटी में
आपके जुडिशरी की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आपने पार्लियामेंट में कानून लाके उनको बाहर रखा और आज उसी उच्चतम न्यायालय को उस इलेक्शन कमीशन से निरंतर और लगातार ये पूछना पड़ता है कि जो ये 3-4% जंप है बिटवीन द फाइनल रिकॉर्डेड फिगर और जो इंटरिम इलेक्टोरल काउंट है, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है। आप जस्टिफिकेशन हमारे सामने रखो। अगर मेरी जानकारी सही है, क्योंकि मैं अपने चुनाव में फंसा हुआ हूं, शायद 24 तारीख को उसकी तारीख लगी है, तो अगर चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्षता से काम कर रहा है, तो मुझे तो नहीं याद कि पिछले इतने वर्ष में, और आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को तलब करके ये पूछा हो कि आपके इंटरिम काउंट और आपके फाइनल काउंट में जो फर्क है उसको सार्वजनिक करिए और उसका हल्फनामा हमारे सामने दायर करिए। तो कहीं ना कहीं तो एक बहुत सीरियस क्राइसिस इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी का पिछले 10 वर्ष में पैदा हुआ है। और लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि 150 पे रुक जाएगी बीजेपी। और दूसरा, तो ईवीएम में आपका फेथ है कि नहीं? दूसरा जो आप कह रहे हैं कि पहले ये होता रहा है, देखिए अगर किसी व्यक्ति ने कोई एबेरेशन की है, 2 wrongs don't make a right, पर जब आप चुनाव आयोग की बात करें तो 1952 से लेकर 2014 तक आपको चीजों को परिप्रेक्ष्य में लेना पड़ेगा। और उस दौरान भाजपा, एनडीए भाजपा की भी सरकार रही है, जनता पार्टी की भी सरकार रही है, जनता दल की भी सरकार रही है, जिसको वामपंथ और भाजपा दोनों समर्थन करते थे। तो ये सवाल पिछले 10 वर्ष में क्यों उठने शुरू हुए। अब मैं आपके ईवीएम के सवाल का जवाब दे देता हूं। देखिए, एक लोकतंत्र एक भरोसे की आधार पर खड़ा है। The question is not whether EVMs are rigged. The question is a perception that EVMs can be rigged. और इसीलिए मैं लगातार और निरंतर इस बात को कहता आया हूं that democracy is too precious to be left to technology alone. बहुत सारे देशों में जहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को अपनाया गया, वो वापस पोस्टल पेपर बैलेट्स पे क्यों चले गए? कहीं ना कहीं तो कोई विरोधाभास रहा होगा, कहीं ना कहीं तो कोई आशंका रही होगी कि वो दोबारा से वो सारे देश पोस्टल बैलेट्स पे चले गए। तो जब ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं, सवाल ये नहीं है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। मेरी परसेप्शन है, इसीलिए बदल डालो। इस देश में वाइड स्प्रेड परसेप्शन। बाकी सब चीजों पे हम सुप्रीम कोर्ट का झंडा उठाएंगे, पर इस बात पे सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं 10 बार कह चुका है कि ईवीएम आर बियॉन्ड एनी क्वेश्चन एट दिस पॉइंट, इंक्लूडिंग रिसेंटली। फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट को अब नहीं मानेंगे क्योंकि ये कन्वीनियंट नहीं है। देखिए, ऐसा है, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? कोई नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और या उच्चतम न्यायालय का फैसला इस देश में सर्वमान्य है, सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं। पर जो एक परसेप्शन है, जो एक धारणा है, उससे हम अपनी आंखें कैसे बंद कर सकते हैं? आज भी जब मैं प्रचार करने जाता हूं, और पिछले 35 दिन से प्रचार कर रहा हूं, और क्योंकि ये एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां पे प्रचार करने का जो तरीका सलीका है वो बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनसे बहुत अलग है। तो जब ज्यादा पर्सनल कांटेक्ट लोगों से होता है, बहुत लोग मेरे को आके कहते हैं कि साहब ईवीएम का ध्यान रखिएगा, साहब ईवीएम का ध्यान रखिएगा। तो जब लोग आके आपको ये बात कहें तो इसका मतलब उनके मन में आशंका है। ये नहीं कि वो उच्चतम न्यायालय के फैसले को नहीं मानेंगे या ये चुनाव ईवीएम पे नहीं होगा, लेकिन जो धारणा है, जो परसेप्शन है, वो किन कारणों से बनी और क्यों अभी भी लोगों के मन में है,
तो चुनाव आयोग को भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए। लेकिन तेलंगाना में हम जीतेंगे, ईवीएम ठीक है। कर्नाटका में हम जीतेंगे, ईवीएम ठीक है। हिमाचल में हमारी सरकार आएगी, हम बिल्कुल शपथ ले लेंगे, ईवीएम ठीक है। लेकिन मोदी जीतेगा तो हम ईवीएम पे सवाल उठाएंगे। नविका जी, हर चीज एक बाइनरी नहीं होती, राइट? दैट आप जीतेंगे तो आप कहते हैं ईवीएम ठीक है, आप हारेंगे तो आप कहते हैं कि ईवीएम खराब है। मैं आपसे जो बात कर रहा था वो बड़ी संजीदा और बहुत गंभीर बात कर रहा था कि लोकतंत्र एक विश्वास की बुनियाद पे खड़ा है। डेमोक्रेसी इज अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, और इसलिए जब उस भरोसे को सेंध लगती है तो ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, शायद आपके शो पे भी कही होगी, कि मेरा ये मानना है दैट डेमोक्रेसी इज टू प्रेशियस टू बी लेफ्ट टू टेक्नोलॉजी। सवाल आपसे पूछूंगी क्योंकि इलेक्शन का समय है और इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की वॉर नजर आती है, और ये वॉर है कि बीजेपी का एक विज्ञापन है जिसमें कहा पापा ने वॉर रुकवा दी, ये सेंटेंस का इस्तेमाल हुआ। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन की रैलियों में मीम्स बनाए जा रहे हैं इसी बात की कि अगर तब वॉर रुकवा दी, अपने लोग बाहर निकाल लिए, तो गाजा और इजराइल की वॉर भी रुकवा देते। ये ऑपोजिशन का कहना है। देखिए, अगर आप मेरे से पूछें कि वॉर रुकवा दी, माय आंसर इज यस। कैसे रुकवाई? मैं खुद विटनेस हूं, मैं साक्षी हूं। I can give you the date, I can give you the time, I can tell you for how long, I can tell you कैसे किया, किसके लिए किया। ये किया 2 बार। एक बार मार्च 5 को खार्किव में, जब हमारे विद्यार्थी जो हैं शहर के बाहर जा रहे थे, एक सेफ जोन था, सेफ जोन के अगल बगल में शेलिंग हो रही थी, रशियन आर्मी शेलिंग कर रही थी। तो मोदी जी ने प्रेसिडेंट पुतिन को फ़ोन किया और उनको कहा कि कृपया शेलिंग बंद करवाइए, क्योंकि हम लोगों के बीच में ये समझौता है कि हम सेफ जोन जाएंगे। तो कुछ समय के बाद वो शेलिंग रुक गई और वो लोग वहाँ जा पाए। जो दूसरी घटना जो थी, और वो ये और जटिल विषय था, ये मार्च 8 को हुआ। ये मार्च 8 के फोरनून में हुआ, सुबह से शाम तक, के एक जगह थी जहां यूक्रेन, रशिया और एक प्राइवेट मिलिशिया थी, इनफॉर्मल मिलिशिया, वो आपस में फायरिंग कर रहे थे। और हमारे स्टूडेंट्स जो थे वो चाहते थे कि वहां से निकलें, और एक बार हमारा प्रयास हुआ, वो प्रयास असफल था, क्योंकि जैसे ही वो लोग बस में बैठे, फायरिंग फिर से शुरू हो गई, तो उनको बस छोड़ के हॉस्टल जाना पड़ा। तो अगले बार जो है हम लोग गए पीएम के पास और कहा कि देखिए, इसमें 2 चीजें हमें करनी होगी। एक तो वहाँ के विद्यार्थी जो हैं उनका मनोबल उतना डाउन था कि हम दिल्ली से कुछ सीनियर अफसर भेजेंगे जो वहाँ तक जाएंगे, ताकि स्टूडेंट को लगे कि अगर दिल्ली से कोई वहाँ तक आया है तो हम वहाँ से दिल्ली पहुँच सकते। तो ये हमारा लॉजिक था, और हमारे 2 सीनियर अफसर जो रूसी बोलते थे वो वहाँ तक गए। दूसरा जो है, हमें रुकवाना था और रास्ता बनाना था कि क्योंकि हम तो हमें रोड तो पता था, क्यों 3-4 विकल्प थे इसमें, पर जब तक रूस, रशिया और वो प्राइवेट मिलिशिया की सहमति न बने कि उस रोड पे उस दिन पूरा दिन फायरिंग नहीं होगा, जब तक हमारे लोग नहीं निकलेंगे, तब तक हम रिस्क नहीं ले सकते थे। तो इसमें हम लोग पीएम मोदी जी के पास गए, और उन्होंने, जब हमने एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने उसके पहले प्रेसिडेंट पुतिन से बात की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात की। उन्होंने अपने फौज को कहा कि आप इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इस पे कुछ सोल्यूशन ढूंढिए। तो दोनों लोग और वो मिलिशिया मिलके हम लोगों ने एक सैनिटाइज्ड पाथवे बनाया। उस पाथवे में वो बस में बैठ के वो लोग आए। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि मुझे पता है या नहीं है या जानकारी, भाई ये हम लोगों का काम था उस टाइम, ये हमारा फर्ज था, और ये हुआ है सच। बिल्कुल, मैं साक्षी हूँ। वो लोग स्टूडेंट निकले ना वहां से, सुमी के। अब ये सोचिए, सुमी के जो भी स्टूडेंट हैं
वो आपको बता सकते हैं कि उस रात तक, उस सुबह तक फायरिंग हो रही थी। उस दिन जिनको वो निकलना था फायरिंग बंद हो गई, तो किसी ने तो रुकवाया होगा ना, क्योंकि रात तक अगर फायरिंग हो रही थी, उनके निकलने के समय में फायरिंग बंद हो गई थी, तो कुछ तो हुआ होगा, अपने आप तो नहीं हुआ। बड़ी बात कह रहे हैं जयशंकर जी, लेकिन जयशंकर जी, ये जो विपक्ष रोज सवाल ऐसी बातों पर खड़ा करता है, उन्हें क्या कहेंगे आप? उन्हें मुझे क्या कहना, वो तो वोटर कहेगा ना उनको, वोटर कहेगा, जवाब तो वोटर देगा उनको। सवाल एक और है, और ये सवाल भी पॉलिटिक्स के दायरे में है. इट इज इन द सर्कल ऑफ पॉलिटिक्स, विच इज द प्रो पाकिस्तान slogans that were shouted, that were allegedly said when Rajya Sabha member of parliament. Let me just play out those slogan shouting when Nasir Hussain, the Rajya Sabha member of parliament from the Congress party, won his Rajya Sabha elections. Can we play? और इसके बाद बीके हरिप्रसाद जी का एक स्टेटमेंट आया, जिन्होंने कहा पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन तो बीजेपी है. अब उसको भी सुन लीजिए. ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ನಮಗದು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರನಾ. तो ये बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और अब अरेस्ट की तस्वीरें आई हैं जो प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स हुए थे, और उनमें तीन लोग अरेस्ट किए गए हैं. एक यहाँ पास में ही हावेरी से, एक गिरफ्तारी हुई है दिल्ली से, और एक बेंगलुरु से. एक की तस्वीर निकली है कुछ कांग्रेस नेताओं के साथ. इन सब के ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या कनेक्शन है? First of all, I don't understand why the Congress party and its leaders jump in the defense of these kind of elements as though they are self-appointed vakils of these terrorists and these anti-national elements. I don't understand why they do that. जब ये न्यूज़ आया कि पाकिस्तान जिंदाबाद का स्लोगनिंग हुआ है, there was a doubt whether this was actually done or not. There was a section of the media that said that perhaps these kind of slogans have not taken place. The BJP said, take it to the lab, test it. There was another section of media which promptly reported saying that there were such slogans heard. There were 8 ministers of this government who went on record multiple occasions saying that there is no such slogans didn't take place, this is fake news, this is verified, ये doctor tape है, ये हुआ ही नहीं. Why do you jump the gun? Why cannot you let the authorities investigate? And कर्नाटका पुलिस का स्टेटमेंट है कि एफएसएल रिपोर्ट आई और उसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई. और ये 3 दिन पहले ही ये रिपोर्ट आया था, ये एफएसएल रिपोर्ट, और 3 दिन तक ये एफएसएल रिपोर्ट को आप पब्लिक क्यों नहीं किया? दबाव क्यों डाल रहे थे आप बेंगलोर पुलिस के ऊपर? And finally now when the report is out and it says that Congress party workers actually shouted Pakistan Zindabad after the election of Nasir Hussain, now you have egg on your face. Who is more committed and who is more successful on national security matters? Congress? BJP? Yes. Okay. The public clearly has one way. लेकिन इस देश में तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं राम काल्पनिक थे, जय श्री राम कुछ होता ही नहीं. डीएमके के ए राजा ने कहा. सनातन धर्म के बारे में उदयनिधि स्टालिन ने कहा वो डेंगू, मलेरिया, एड्स है. राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में ऑपोजिशन का कोई भी
गया ही नहीं, इनविटेशन के बावजूद गए नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि देश में राम यूनाइटिंग फैक्टर है, सबको जोड़ रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे राम अलग हैं, हम आपके राम आपके इनविटेशन पर जाएंगे तो कौन सा नहीं। राम है उनका राम? हम सब तो वाल्मीकि के राम को अपना राम समझते हैं, हम तो सबरी के राम को अपना राम समझते हैं, हम तो अयोध्यावासी राम को अपना राम समझते हैं। और हर गली में जो राम के मंदिर है, जहां सीता का भी पूजा होता है, जांबवान का भी पूजा होता है, हनुमान जी का भी पूजा होता है, उसमें हम राम को देखते हैं। इनका राम कौन सा है? अब तो एड्रेस थोड़ी तो बता दो, हम भी जाकर दर्शन करके आएंगे। आपके इनविटेशन में वो अयोध्या नहीं गए? ये मेरा इनविटेशन नहीं था नाविका जी, ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, ये राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यक्रम था। राम मंदिर ट्रस्ट ने सबको इनविटेशन भेजा था, सोनिया जी को इनविटेशन भेजा था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इनविटेशन भेजा था, सीपीएम के लोगों को इनविटेशन भेजा था। एक्चुअली वैसे देखे तो हम सबको नहीं आया था। और यहां कॉन्स्टिट्यूंसी में कई सारे अपने लोग, उस दिन जब हम यहीं घूम रहे थे अलग अलग मंदिर, सब लोग हमें पूछ रहे थे कि भाई साहब आप क्यों नहीं गए हैं? मैंने बोला इनविटेशन नहीं आया है इसलिए हम नहीं गए, बाद में तो हम जाएंगे। भगवान का दर्शन करने के लिए इनविटेशन का जरूरी नहीं है, जब भगवान का बुलावा आता है हम जाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कि 3 राज्यसभा मेंबर आप तोड़ने के चक्कर में थे। आपसे मतलब बीजेपी, राघव चड्डा, स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह को आप तोड़ने के चक्कर में थे। देखिए, क्योंकि ये साइलेंट थे जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए। देखिए, जहां तक राज्यसभा के मेंबर्स हैं आम आदमी पार्टी के, द जनरल टॉक अराउंड वाज दैट दीज सीट्स वर commercially negotiated. That was the expression. मतलब बेचे गए थे? That is what this suggestion. पर आप तो सरकार में आपने पता लगवाया होगा। नहीं, हमें तो कई चीजें पता लगती है, बट वी आर नॉट एट फ्रीडम टू स्पीक। मैं तो यही कह रहा हूं। अब उसमें जिससे आपने, अगर आपने, लेट अस से इफ इट्स अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन एंड द पॉपुलर, मैं तो हंसी मजाक में पूछा भी था, मैंने कहा यार वो आपने सौदा किया था, वो ले लिया, मतलब पहुंच गए कि नहीं पैसे आपके पास, कि अभी बाकी है थोड़े से? तो हंसी मजाक में कह रहे थे वो बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, पूरे आ जाएंगे पैसे। इस लेवल पे ये लोग बात करते हैं। और आई थिंक अदर देन सीचेवाल जी, वो जो member of the Rajya Sabha, unko nahi, because I think they wanted to get 1 or 2 people to show. The others are businessmen. The others are businessmen. और अब वो एक हरभजन सिंह की बात कर, नहीं, हरभजन सिंह की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी सबकी बात कर रहा हूं। मैं इंडिविजुअल, मैं कौन होता हूं किसी पे बात करने? अगर आपने कमर्शियल ट्रांजैक्शंस किए हैं राज्यसभा सीट्स पर, जो पॉपुलरली कहा जाता है, आई डोंट हैव एनी एविडेंस, आई से दैट ऑन, बट दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग. Then in that case, when you are in a bind, and let's say hypothetically, you want to give that Rajya Sabha seat to your lawyer. Let's say, I'm not saying you are or you're not, or to your chartered accountant, जो भी है, तो उसमें क्या आपसे बात हुई, आ जाएगी बाहर बात, ये छुपी नहीं रहेगी. जहां तक आपका आरोप है कि we want them over, no. पर आप तो सबको ले लेते हैं, वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग वो 1-2 को लिया, और वो भी आपकी जो वॉशिंग मशीन है, आपने कोई वॉशिंग पाउडर कोई ब्रांड चलाया था, इसलिए मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा था. देखिए, हमारे यहाँ बिल्कुल क्लैरिटी है. वी आर एन एक्सपैंडिंग पार्टी. 2 से हम 303 पर पहुंच गए हैं, और वी आर अ पैन इंडिया पार्टी. Throughout the country, people who want to better their prospects and serve the nation, they will come in our direction. That doesn't say that we are indiscriminate. कई लोग आना चाहते हैं जिनको हम मना कर रहे हैं. एक और स्टेटमेंट आया, और अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि यहाँ पर अमेठी में तो केएल शर्मा जी ही काफी हैं स्मृति जी को हराने. अगर वो काफी होते तो गहलोत साहब क्यों मंडरा रहे हैं? अगर वो काफी होते तो प्रियंका जी क्यों नुक्कड़ 15-20 लोगों को लेकर सभा करने की कोशिश कर रही हैं? इसका मतलब आपको अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को कांग्रेस में एक सोनिया गांधी का मुलाजिम हरा सकता है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा नहीं हरा सकता. लेकिन पार्टी से कोई भी अगर आकर यहाँ पर सभा करता है तो वो अपने प्रत्याशी के लिए करता है, इसमें गलत क्या है? आपको यही कह रहे हैं गहलोत साहब कि राहुल गांधी में दम नहीं मुझे हराने का, तो इसीलिए किसी और को टिकट दे देते हैं. लेकिन तो अशोक गहलोत मेरी नहीं, गांधी परिवार की कब्र खोद रहे हैं.
बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। नहीं, सत्य है। आप बतलाइए ना, आपने कभी गहलोत साहब को, आपने इतने वर्षों यहाँ पर इलेक्शंस कवर किया, किसी ने आज तक अशोक गहलोत को गली गली घूमते देखा है? तो वो राहुल जी के लिए क्यों नहीं घूमे? तो जयराम रमेश जी का कहना है, और वो मीडिया सेल के चीफ भी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि अगर सिर्फ जयराम रमेश राहुल खड़े होते तो आपका कद बढ़ जाता। देखिए, मेरा कद तो तब बढ़ गया था जब मैंने राहुल गांधी को हरा दिया, जब वो कांग्रेस पार्टी के केंद्र में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जहां तक कि जयराम रमेश जी की बात है, उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है। दम है तो यहाँ आकर सांसद क्या, सभासद का चुनाव लड़कर दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि मुद्दे वही हैं अमेठी में जो बरसों पहले भी थे। नहीं, आज मुद्दा ये है कि अगर 5 साल में स्मृति ईरानी मोदी और योगी सरकार के समन्वय से यहाँ 1,14,000 घर बनवा पाई, जबकि 5 सालों में 2 वर्ष कोविड के थे, तो फिर राहुल जी की तो माताजी की सरकार थी केंद्र में, राहुल जी के मित्र की सरकार थी प्रदेश में, तो उन्होंने क्यों नहीं बनवाए? आज मुद्दा ये है कि अगर 5 सालों में मोदी और योगी सरकार के समन्वय से स्मृति ईरानी ने क्षेत्र में 4 लाख परिवारों के लिए शौचालय बनवा दिया, तो राहुल जी की सरकार थी केंद्र में, उनके मित्र की सरकार थी प्रदेश में, उन्होंने 15 साल क्यों नहीं बनाया? आज मुद्दा ये है अमेठी में 3,50,000 घरों में जल जीवन मिशन से नरेंद्र मोदी नलका लगवा सकते हैं सांसद के सहयोग से, सांसद के निवेदन पर। तो 10 साल राहुल जी की सरकार थी केंद्र में, प्रदेश में उनके सहयोगी दल की सरकार थी, उन्होंने नल से जल क्यों नहीं दिलवाया? आज ये सवाल है अमेठी में कि स्मृति ईरानी ने मोदी योगी सरकार की वजह से क्षेत्र की जनता में 1.5 लाख ऐसे परिवार है जिनके पास कभी विद्युत का कनेक्शन नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिलवा दिया 5 साल में। 15 साल राहुल जी यहाँ क्या कर रहे थे? आज सवाल ये है कि यहाँ पर कई पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसियां लोकल कांग्रेस नेताओं के नाम पर है, फिर भी स्मृति ईरानी ने 5 साल में 2,20,000 घरों में गैस का कनेक्शन दिलवा दिया उज्ज्वला योजना के माध्यम से। तो स्मृति ईरानी ने 5 साल में ये काम किया, 15 साल राहुल जी और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? वो कहते हैं उन्होंने यहाँ बनाया, क्या बनाया? NIFT बनाया, वो क्या बनाया? यहाँ निफ्ट नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। और अमेठी में है क्या निफ्ट? उन्होंने राजीव गांधी उड़ान केंद्र बनवाया। देखिए, वो उड़ान केंद्र जो बना उनके हवाई जहाज को उतारने के लिए बना। आप जाकर तफ्तीश कीजिए, उसकी बोर्ड पर राहुल गांधी खुद सदस्य थे। आप उनसे पूछिए कि अपना प्राइवेट प्लेन नीचे लाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक हवाई स्ट्रिप बनाई, उन्होंने अपने लिए प्लेन की व्यवस्था की, मोदी ने उसी एयर स्ट्रिप को अब उड़ान योजना से जोड़ दिया है। लोकोमोटिव फैक्ट्री बनाई, लोकोमोटिव फैक्ट्री नहीं बनी है अमेठी में। है क्या लोकोमोटिव कोई फैक्ट्री? आप उनके झूठ को आज पब्लिक से पर्दाफाश होते देख रहे हैं। रेल डिब्बा फैक्ट्री वो यहाँ नहीं है, वो रायबरेली में है। कपूरथला से वो लोग डिब्बा लाके यहाँ पेंट करके लगाए थे, ये दिखलाने के लिए कि ये रेल कोच फैक्ट्री है। आज मैं आपको पब्लिकेशंस का नाम बता रही हूँ, अब वो पब्लिकेशन आपका भी नहीं है। मैं अमेठी की जनता से पूछती हूँ, क्या राहुल गांधी और गांधी परिवार ने यहाँ कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। और इस बार स्मृति ईरानी, उन्होंने क्या किया पिछले? मैडम, आप जिस सड़क से आ रही है वो भी मैंने ही बनाई है। कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि आपने देखिए यहाँ घर बनाया है, वो साइकोलॉजिकली एक वॉरफेयर कर रही हैं आप। इसका मतलब उनको ये तो पता है कि मैं वॉरफेयर के लायक हूँ। मतलब एक छटाक भर की स्मृति ईरानी पूरे कांग्रेस के इकोसिस्टम को लाकर यहाँ बैठा देती है। इतना दम तो भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता में है। प्रियंका गांधी वाड्रा, एक आप दीदी हैं अमेठी की और एक वो दीदी हैं अगर राहुल दीदी गांधी है की, तो मुझे जो रायबरेली में कैंप कर रही हैं। तो वही तो कह रही हूँ, वो व्यक्ति अपने दम पर, वो दीदी नहीं है, वो राहुल गांधी की तो दीदी है। मैं स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी अकेले क्या चुनाव लड़ने का दम नहीं रखते हैं?
जिस आदमी को अखिलेश यादव के सहारे की जरूरत है वो क्या नेता होने का दावा करता है? अगर राहुल गांधी में दम था तो वायनाड से पर्चा क्यों भरा? सीधा रायबरेली से पर्चा भर देते। पहले वायनाड की जनता को धोखा दिया। वायनाड से पर्चा भरते वक्त वायनाड की जनता को नहीं बताया रायबरेली जा रहे हैं, और इतने बड़े नेता हैं तो यहां से लड़ लेते हैं। पर यही तो कांग्रेस कहती है उनकी स्ट्रैटेजी है। क्या वो आपकी आपको पड़ोस की चौंकाना सीट से लड़ो? मैं चौंक जाऊंगी कि राहुल गांधी निकम्मे हैं? वो तो दुनिया जानती है। इसमें चौंकाने वाली क्या बात है कि राहुल गांधी में दम नहीं है? लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक हो जाते हैं तो कई बार 1 और 1 11 भी हो जाते हैं। 9-2-11 हो जाएंगे। आज आपको इस बात का आश्वासन देती हूँ।